बच्चों में, नौजवानों में स्पोर्ट्स को फरोग देने के लिए, खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए कोशिशें जारी। उमर इस्माइल खान की क़यादत में कोशिशें जारी। बेंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब के तहत रामनगरम में डॉक्टर मुमताज अहमद खान फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार इनाकाद। जी हां दोस्तों, रामनगरम में डिस्ट्रिक्ट लेवल अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट का इनाकाद अमल में आया। 5 अक्टूबर 2024 बरोज हफ्ता रामनगरम की गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक़द हुई। मुख्तलिफ कॉलेजों की टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी, गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के ताउन से बेंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब ने इस टूर्नामेंट का एहतमाम किया। 19 साल से कम उम्र के बच्चों ने पूरे जोश व जज्बे के साथ फुटबॉल मुकाबलों में हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का, टैलेंट का मुजाहिरा किया। ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರಿಸಲು खराब मौसम के बावजूद 6 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। रामनगर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज जेडी महावरकर चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे और आपके हाथों मुकाबलों में नुमायां कामयाबी हासिल करने वाली टीमों और खिलाड़ियों को इनामात और अवार्ड से नवाजा गया। रामनगर के जज जेडी महावरकर ने कहा कि स्पोर्ट्स के जरिए साउंड बॉडी, साउंड माइंड, सेहतमंद जिस्म और सेहतमंद जहन तश्कील पाता है और इसके नतीजे में मुल्क की तरक्की होती है। अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान ने कहा कि फुटबॉल को फरोग देने के लिए बुजुर्गों ने बेंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब कायम किया था। अंग्रेजों की टीमों के साथ बेंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब की टीमों ने मुकाबला किया था। उमर इस्माइल खान ने कहा कि एक वक्त था मुसलमान खेल के मैदान में, स्पोर्ट्स में काफी आगे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्पोर्ट्स से, खेलकूद से दूर होने लगे। ताहम दोबारा स्पोर्ट्स के ज़ौक़ व शौक़ को फरोग देने के लिए बेंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब के तहत कोशिशें शुरू हुई हैं। पिछले चंद दिनों में बेंगलोर में फुटबॉल के 7 टूर्नामेंट मुनक़द हो चुके हैं। अब जिलाई सतह पर रामनगरम में पहली मर्तबा फुटबॉल टूर्नामेंट का इनाकाद किया गया है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। Raining is a good sign. As our Secretary Sir has stated that this football tournament is being commenced right since for the first time, I think. In Ramnagar. Okay. It gives me an immense pleasure to be a part of this function, Valley Cricket function. What I have gathered the information from some other source also. Wherever we go, we gather some source before rendering or giving any speech. Few words. It's a very talented football tournament that which has been successfully completed today. I am told that because of raining, some of the teams have withdrawn their registration. Never mind. I wish so far as that by the next year, let they also come and play. Apart from the same, what I would like to say is, game is a game, no doubt. The very object behind the game is always, it will be hidden. We need to understand that what is the object. It certainly jets out means it brings out the cooperation, coordination within the players in a team, perseverance, resilience,
and teamwork. So that you have done today. Today's youth is tomorrow's citizen who has to be a great personality to build the nation. In that sense, a person who has the good health, he will have the sound mind. Similarly, by playing the games, certainly the youths will have more and more benefit for their development, which results into ultimately the development of the nation. Here everyone is youth, I say, and you have become a role model to the next generation or the younger to you all. Let your zeal and zest to play the football, you continue the same simultaneously, carry on with the studies also. But do not neglect one and the other, go in for the other one. So simultaneously, it is just like two wheels of a chariot. Without a wheel, out of these two, a chariot cannot go ahead. Similarly, take away your zeal and zest of playing the football, and then along with that, you go in for with the studies. So let your future be bright. I wish in the Almighty that you be a role model, and bring the medal. See how the Almighty is making me to speak that you will be getting the medal in one or the other day, in future. Definitely you go up the highest, topmost level, paramount level, so that the institution's name shall be hoisted in a very मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब का टूर्नामेंट है। इस बार हमें अलमीन एजुकेशन सोसाइटी और गौसिया इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग ट्रस्ट के साथ मिलकर हम एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये टूर्नामेंट रामनगर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 टूर्नामेंट है। डॉक्टर मुमताज अहमद खान के नाम से ये टूर्नामेंट चला रहे हैं। तो जितने भी अंडर 19 के टीम्स हैं यहाँ यूसी कॉलेजेस के, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डिग्री के फर्स्ट ईयर डिग्री के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये माशाल्लाह रामनगर डिस्ट्रिक्ट का पहला टूर्नामेंट है। ऐसे ऑलरेडी हमें 7 टूर्नामेंट बैंगलोर में कर चुके हैं। इस बार फर्स्ट टाइम रामनगर डिस्ट्रिक्ट को आए। मेन ये मकसद क्या है ये टूर्नामेंट का कि फुटबॉल को प्रमोट किया जाए। बैंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब के जरिए से एक कौम में और एक मुसलमान बच्चों में और दूसरों में भी एक फुटबॉल का शौक जगाए, ताकि अच्छे प्लेयर्स उभर के आए और एक अच्छी टीम बने, एक बैंगलोर मुस्लिम से एक्सक्लूसिव टीम बने जो सी डिवीजन, बी डिवीजन, बाद में ए डिवीजन में खेले जाए। ये कोशिश हो रही है 2 साल से, तो ये कोशिश का एक हिस्सा है। तो आज माशाल्लाह ये बहुत अच्छी जगह रामनगर में बड़े अच्छे ग्राउंड में टूर्नामेंट हुआ है और रामनगर डिस्ट्रिक्ट से हमको माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो ये टूर्नामेंट यहाँ चल रहा है। सर माइनॉरिटीज के स्टूडेंट बहुत कम आते हैं, बहुत कम है, इनके लिए क्या ये है? पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जो है पहले स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा थे और बहुत फेमस थे स्पोर्ट्स में। और मुस्लिम टीम से जो है जो बैंगलोर मुस्लिम्स की टीम थी, वो इंग्लिश प्लेयर्स जो थे अंग्रेज, वो खुद डरते थे उनके साथ खेलने के लिए। वैसा दबदबा था हमारा स्पोर्ट्स में। अब स्पोर्ट्स फॉर वेरियस रीजंस हमें स्पोर्ट्स से मुसलमान दूर हो गए और फिर वापस जो है अब मौका अच्छा है। स्पोर्ट्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, स्पोर्ट्स खेलने से फाइनेंशियल भी हेल्प ज्यादा हो रहा है, इसलिए तो सब लोग ज्यादा फैमिली के लोग स्पोर्ट्स में आना, ये हमारी कोशिश है। माशाल्लाह इस बार जो टीम्स खेल रहे हैं, जामिया आलम है, गौसिया के 2 टीम्स हैं, चंदपटना की टीम है, इसमें अक्सर ज्यादा मुसलमान लोग भी हैं और दूसरे जो कॉलेजेस की टीम है हम लोग वहाँ नॉन मुस्लिम भी बच्चे भी हैं। दिख रहा है कि मुसलमान फिर वापस जो है स्पोर्ट्स में दिलचस्पी ले रहे हैं। उनको अपॉर्चुनिटी देना है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देने से हमको मालूम होता है कि टैलेंट क्या है मुस्लिम कम्युनिटी में। ये टूर्नामेंट्स करने का मकसद ये है कि टैलेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको सपोर्ट किया जाए। क्या अपील है सर स्टूडेंट्स के लिए, आपकी क्या अपील रहेगी? ये स्टूडेंट्स के साथ जो हमारे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन सबसे अपील किया जाए जब ये टूर्नामेंट्स अनाउंस होते हैं तो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और फुल सपोर्ट करें। सपोर्ट क्या इस तरीके से कि बच्चों को आप टीम ऑर्गेनाइज करके इधर भेजें, बच्चे इधर आके खेलेंगे तो उनका पोटेंशियल उनको मालूम होता है, आपस में एक दोस्ती बढ़ती है, एक नेटवर्किंग होता है, ये अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे जब भी हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जो टीम्स को पहुंचते हैं, प्रिंसिपल्स को पहुंचते हैं या क्लब टीम्स, क्लब के मैनेजर्स को पहुंचते हैं, ओनर्स को पहुंचते हैं, तो उन लोगों सबसे ये टूर्नामेंट में अपने टीम्स भेजकर ताउन करने की
हमारा एक रिक्वेस्ट है। सर अल-अमीन कॉलेज का क्या मकसद है अगले दिनों में या स्पोर्ट्स के लिए, किस तरह की एक अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी के तहत बहुत से ज्यादा कॉलेजेस चल रहे हैं, वहाँ एजुकेशन पर जोर है। स्कूल्स में ज्यादा हमें तवज्जो दे रहे हैं कि बच्चे 100% रिजल्ट आए, मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट क्लास पास हो, ये स्कूल एजुकेशन निकाले हैं। और डिग्री लेवल में पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च ये वगैरह जो भी हमारा जरूरत है ये भी हम कर रहे हैं। बैंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब के जरिए से मेनली हमें फुटबॉल को प्रमोट करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, जो क्योंकि हम बैंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स टेक ओवर किए हैं तो जिम्मेदारी पूरी करनी है। और स्पोर्ट्स का खासकर फुटबॉल का एक जोश, एक शौक मुसलमानों में लाना है, ये हमारा मकसद है। जनाब उमर इस्माइल खान साहब ने माशाल्लाह नौजवान हैं, इस वास्ते हमेशा वो स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, खासकर हमारी कौम में बेदारी लाना चाहते हैं। माशाल्लाह वो अंडर 19 अंडर 15 के पीछे बच्चों को की रहते, ये बच्चे आगे चलकर हमारा मुस्तकबिल बनेंगे इंशाल्लाह, वो है ना, ये ज़हन में रखते हुए इन्होंने काम कर रहा है। माशाल्लाह होसकोटे में भी अंडर 15 अंडर 19 चलाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट में रामनगरम में, ये रामनगरम बड़ा वो स्थान बेल्ट है फुटबॉल के लिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा बेल्ट है। यहाँ भी है ना अल्हम्दुलिल्लाह टूर्नामेंट का डॉक्टर मुमताज अहमद खान टूर्नामेंट का आगाज किए हैं। डॉक्टर मुमताज अहमद खान साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, वो खुद एक फुटबॉल प्लेयर थे, बहुत जबरदस्त फुटबॉल प्लेयर थे। वो चेन्नई जो मेडिकल कॉलेज है उसमें पढ़ा करते थे MBBS, और वो फुटबॉल के कैप्टन भी थे यूनिवर्सिटी के। वो बहुत जबरदस्त प्लेयर थे, उनको बहुत शौक था फुटबॉल का। अल्हम्दुलिल्लाह आज है ना उनके फर्जंद जनाब उमर इस्माइल खान साहब ने है ना उनका जो ख्वाब था वो पूरा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब डॉक्टर मुमताज साहब थे बाहयात थे तो हम लोगों को बहुत हिम्मत करते थे, हम लोगों को जहां भी टूर्नामेंट खेलने के जाने, अल-अमीन खासकर अल-अमीन जो इदारा है जहां भी हम जाना चाहते थे वो कभी मना नहीं करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, हमारी टीम क्रिकेट टीम मलेशिया जाके खेली, फुटबॉल टीम मलेशिया में कोचोबारू करके वहां जाके खेली, और श्रीलंका में जाके खेली, सिंगापुर में खेली। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। जब वो जिम्मेदार थे माशाल्लाह, किसी बात की हम लोगों को कमी होने महसूस होने नहीं दिए। जब भी हम लोगों को डॉक्टर साहब हम लोग इधर जाना चाहते हैं, उधर खेलना चाहते हैं, आप क्या करें, आओ जाओ जाके खेलो, अच्छा ये करो। इसीलिए अल-अमीन का नाम अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से लगातार अल-अमीन का नाम बाकी है। आज कर्नाटक में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में आज भी अगर हमारी नंबर 1 टीम है हॉकी, अभी हम लोग ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जीत के, साउथ जोन जीते, खेलो इंडिया जीते, ये पूरे के पूरे अल-अमीन के प्लेयर्स है, दूसरे प्लेयर्स एक भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजल है। ये मैनेजमेंट, ये भी जो मैनेजमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उमर इस्माइल खान साहब, हम ना किसी बात की कमी होने नहीं दे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं और हम लोग भी उनका साथ दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।